Assalamu alaikum, my dear students of grade 12. I hope you're all doing great by the grace of God Almighty. Well, after a long time, Tufele Haji right now from the platform of Sky Classes with you for the all important program that you have been waiting for. मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं और जिस प्रोग्राम के लिए आप इतने महीने वेट कर रहे थे, finally that program has been rolled out. Yes, you heard it right. We are talking of ORCC, and this prized and inimitable initiative from Sky Classes has been benefiting thousands of students across the valley. Remember, Class 12 students have one subject that normally gives them the creeps, especially when the exam comes a little nearer. Yes, you got it right. I'm talking about the subject that carries 100 all important marks, but then you do not, because of the pressures around from physics, chemistry, biology, mathematics, get enough time to handle it. And once the exam comes, Sky Classes also comes with that wonderful gift for all of you. And that gift is ORCC, and this is coming up straight from the platform of Sky Classes 2025 for our dear students of class 12. Remember, last 2 years also I have been with you for the important ORCC English program, and I am very sure I have met so many students who have been calling me up and who have been meeting me and telling me that this ORCC program for English has been a great blessing, a great boon for the students. Very many of them could manage more than 90 to 95%. Look at the success rate, my dear friends. Sky Classes has come with this wonderful formula for all of you to cover up the things, wind up, give a finishing touch, a polishing touch to the concepts. And when it comes to English, मुझे पता है कि आप सब जो हैं वो डेट शीट के आने के बाद ही इंग्लिश के बारे में सोचते हैं, और क्यों नहीं, जब आप कूल एज क्यूकम्बर होंगे. इस वजह से रीज़न क्लियर है कि स्काई क्लासेस के पास आपके लिए एक बहुत ही रेडीमेड फॉर्मूला होता है. एंड थ्रू तुफैल हाजी आई एम राइट नाउ गोइंग ऑन विद दिस ऑनलाइन कैप्सूल कोर्स फॉर इंग्लिश, और आज हम स्टार्ट करने जाएंगे 12 at the rate of 12. Now, what do you mean by 12 at the rate of 12? In 12 lectures time, grade 12 students will get all the ocean of English, be it poetry, grammar, writing skills. We have the prose, the literature, everything will be covered up in those 12 lectures. And here I am with the first lecture, and obviously, as I keep on saying, that planning is very important. Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare. So we have the vision to get that mission 100 accomplished. वो 100 marks हमें accomplish करने हैं, and I want to tell you that these 100 marks are with me, dear friends, for all of you. आपको बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है. Stay cool as cucumber. Make sure you are confident. You have to have all these 12 lectures recorded, learnt. I'll go live also for a few sessions. Have your doubts clarified from me. Make sure that you are giving your full 100% to these 12 lectures. Inshallah, we'll be covering up those 100 marks. All these 100 marks we'll try to get to your kitties. So this is ORCC 2025 program getting started from the platform of Sky Classes. Saddam sir and team coming up with this prized initiative for all the students of grade 12 across the valley. Take the benefit from this all-important program. This abbreviation speaks for itself. ORCC, board pattern, specific questions, that's going to help you in catering to those all-important 100 marks. First up, आपको बताना चाहूँगा कि what all we are going to do. What is our syllabus? You need to know it, because when you want a beautiful destination, you need to know the track. So we need to know what is our track. Our track is, we have 100 marks, we have 80 marks theory, we have 20 marks internal assessment, and that 20 marks are going to be given to you from the schools on the basis of the skills, the listening skill, the speaking skill, the reading and writing skills, the project work, that's going to be given to you from the
schools. I'm sure वो 20 मार्क्स आपकी जेब में ऑलरेडी मौजूद हैं. हम लड़ेंगे 80 मार्क्स के लिए और सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे 80 मार्क्स को. और 80 मार्क्स में से आपके पास जो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स है, दैट इज द फर्स्ट लिटरेचर बुक, दैट इज फ्लेमिंगो. इट इज एन intellectually rich book. You have the lessons, may not be read by you so far, but then I'm going to give an overview of all these lessons. I'm going to take you through the question paper, the pattern that is actually going to be visible to you for the exams, and all the poetic devices, my dear friends, from the poetry, important questions for the examination. Everything is going to be catered to, but we need your focused attention. We need your fixed attention for these 12 lectures. 12 at the rate of 12. I'm going to squeeze this whole ocean into a pond in these 12 lectures. Important 12 lectures. The last lesson is the first lesson for us to do. Lost Spring, Deep Water, wonderful lesson that talks about the fears. And then we have the Rat Trap, a very beautiful lesson. We have Indigo, we have Poets and Pancakes, we have the interview, Going Places, and then we have the poetry. We have Kamala Das. You must have read her in class 10th also. My Mother at 66, an emotional poem. We have Keeping Quiet, A Thing of Beauty is a Joy Forever, John Keats. We have A Roadside Stand. We have Aunt Jennifer's Tiger. And then from the vistas, we have the other book, the supplementary reader. We have the third level, The Tiger King, A Journey to the End of the Earth, The Enemy, On the Face of It, On Memories of Childhood, The Cutting of My Long Hair. We have some lessons deleted also from this. I'll take you through that part as well. Please do not worry about. I'll talk about the deletions also. This is the textbook part that we have been given. There are some chapters deleted also, जिसके बारे में आपको बताता जाऊंगा. And then how is it going to be the scheme of assessment for us? पहली बात, जो important बात है, आप सबको जाननी है कि जो हमारे पास 80 मार्क्स हैं, उनमें जो 30 मार्क्स हैं वो स्पेसिफिकली होंगे राइटिंग स्किल्स और ग्रामर पे. सो 30 मार्क्स आउट ऑफ 80 writing skills and grammar. What all will be going to be, will it be from the writing skills? What all will it be going to be for the grammar part? I'll talk about that. 20 marks जो होंगे, they'll be based on your comprehension, passage comprehension. उसमें हमें note making है, summarization है, उसके साथ साथ एक unseen passage होगा, उसके नीचे questions होंगे. What will be the strategies and the skills and the steps that you need to follow to do them? That is also what I'm going to take you through. देखा जाए तो 30 + 20 50 मार्क्स जो हैं वो राइटिंग स्किल्स और ग्रामर में है. तो आप अंदाजा कर लीजिए 70% मार्क्स जो हैं 80 में से, इनफैक्ट 60 to 70% मार्क्स जो हैं वो टेक्निकल है, और उस टेक्निकल एस्पेक्ट में आप सबके लिए 80 मार्क्स में से 50 मार्क्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे मेटिकुलसली फ्रॉम दिस ऑनलाइन कैप्सूल कोर्स फॉर इंग्लिश, ORCC. Once again, और जो बाकी 30 मार्क्स हैं, they'll be for literature reader, they'll be for the poetry, they'll be for the long answers and the short answer questions. Let us see what are you going to get. आप एग्जाम में क्या देखेंगे? आप एक unseen passage देखेंगे जिसके आपको notes बनाने होंगे. That's note making technique. That's what I have taught you in grade 11 also through ORCC. We'll revise that once again. We have summarization, 4 marks. That also we have done in grade 11. Once again, that will have to be repeated a little. You'll get an unseen prose passage, लगभग 400-500 words का. It will have 10 objective type questions, and those 10 objective type questions will be based on the comprehension, inferences. You'll have vocabulary, you'll have interpretation, you'll have MCQs, fill-ups, true, false. I'm going to take you through a few samples also. You'll be understanding how that passage comes in the examination. For writing skills and grammar, आपको advertisement writing है, आपको formal informal invitations and replies हैं, 4 marks का question वो हो जाएगा. उसके बाद जो letter writing है, you'll have letters to the editor, you'll have letters on different issues and concerns to be written. And remember, my dear friends, 6 marks where you'll be tested for salutation, you'll be tested for complimentary close, you'll be tested for address, main body, कैसे लिखना है. That is what will carry these 6 marks. How will these 6 marks be distributed? And then you have a question that is based on resume writing. When you send a job application and then you send a resume, a CV, curriculum vitae, what we call in English, उस पे भी आपको 4 marks होंगे.
resume के 4 marks. You'll have to learn how to write a cover letter also from 120 to 150 words. That will also carry 2 marks. And then you have article writing, debate writing, speech writing, personality profile, personal narratives, humorous writing. इन topics में internal choice होगी और आपको 6 marks वहां से मिल जाएंगे. And then we have an important part that is based on grammar. You'll get a passage which will have 100 to 150 words, and there will be some grammatical errors in them. Remember, diagnosis is the first step for a doctor. When you identify a mistake, then only can you give it medicine. Then only can you correct it. आपको एक passage मिलेगा, 8 गलतियां होंगी उसमें, और वो गलतियां होंगी ग्रामर के टॉपिक्स में से. टॉपिक्स हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, टॉपिक है टेंस, पंक्चुएशन, नरेशन, conjunctions, prepositions, and change of voice. So all these grammatical items need to be in your pocket, my dear friends, and you need to understand them conceptually to identify those mistakes. Once the mistakes are identified, 50% game is done, and then you have to find the remedies. Remedy भी वो देगा जिसको पहले पता होगा गलती क्या है. जो हाथ जख्म देते हैं वही हाथ मरहम भी करते हैं. उनको पता होना चाहिए कि जख्म कहाँ है और मरहम क्या लगेगा. So in order to understand grammar part, you need to obviously make sure that you have identification techniques understood, how to identify a mistake, where can a mistake occur from grammar. That is where I'm going to help you. That's where Sky Classes is going to help you. So this will be a total of 50 marks for you, 30 plus 20. And then as I told you, from literature 30 marks जो होंगे वहाँ पे आपको एक poetic passage मिलेगा जिसके 4 ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे, और वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स थीम के रिलेट हो सकते हैं, पोएटिक डिवाइसेस के रिलेट हो सकते हैं. वेदर यू टॉक ऑफ मेटाफर, यू टॉक ऑफ एलिट्रेशन, यू टॉक ऑफ एनाफोरा, यू टॉक ऑफ एंजेम्पमेंट, यू टॉक ऑफ एक्सटेंडेड मेटाफर, यू टॉक ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोएटिक डिवाइसेस दैट आर यूज्ड. वो डिवाइसेस आपको पोएम्स के अंडरलाइन करने हैं. नोट्स जो मैं आपको दूंगा उन नोट्स में मैंने आपके लिए काम आसान कर दिया है. आई हैव हाईलाइटेड दोज लाइन्स फ्रॉम द पोएम्स विच कंटेन स्पेसिफिक लिटरेरी डिवाइसेस, सो दैट इट्स गोइंग टू बी easy peasy, a cakewalk for all of you when it comes to getting those marks in English for poetry. And then we have 2 to 3 short answer, rather 3 short answer questions will be given. उनमें 2 करने होंगे और वो भी होंगे poems के related. So कह सकते हैं कि हमारी poems जो है इंग्लिश की वो है पढ़नी है, समझनी है, line by line जो है I'm sorry, line by line जो है वो पोएम्स हमें पढ़नी होंगी और उनके डिवाइसेस चेक करने होंगे, उनके थीम्स चेक करने होंगे, उनके सेंट्रल आइडियाज चेक करने होंगे, सम एंड सब्सटेंस चेक करना होगा. देन ओनली विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दोज क्वेश्चंस एंड आंसर देम comfortably based on theme, global comprehension, and it'll be 40 to 50 words answers. 2 marks होंगे 3 questions के, या अगर 2 करने होंगे तो 3 marks होंगे, तो that will be 6 marks for you. So 5 short answer type questions होंगे Flamingo book से, एंड उसमें क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट होगी. इन्फरेंस, व्हाट आर यू इन्फरिंग फ्रॉम द पैसेज, आपको अपने वर्ड्स में आंसर्स लिखने होंगे. ऑब्वियसली ये क्वेश्चन भी वही अटेम्प्ट कर सकता है जिसको लेसन का ओवरव्यू पता है, जिसको लेसन का थीम पता है, जिसको लेसन के मुख्तलिफ क्रिटिकल एस्पेक्ट्स पता हैं. तो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे लेसन्स के, आई विल बी डिस्कसिंग देम सो दैट इट्स ईजियर फॉर अस. वी मे नॉट बी एबल टू डू line by line study. Obviously we are to cover whole thing in 12 lectures, but as I told you, we'll hit the nail on its head. We'll not beat about the bush. We'll hit the bullseye. Whatever is exam specific, we'll handle. Whatever is not, we'll obviously send it to the dustbin. And then we have 3 out of 5 short answer type questions. Choice होगी, 3 करने होंगे और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे. फ्लेमिंगो बुक से होंगे, लिटरेचर पार्ट से होंगे और 9 मार्क्स वहां से हासिल करेंगे. 1 आउट ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, 2 आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे. चॉइस होगी विस्टास बुक से, प्रोज से. जो लेसन्स मैंने अभी बताए थे उनमें से 2 क्वेश्चंस होंगे लॉन्ग आंसर, उनमें हमें 1 करना होगा और दिस विल कैरी 6 मार्क्स. ऑब्वियसली वंस अगेन थीम, स्टाइल, क्रिटिकल थिंकिंग, ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन, दोज क्रिएटिव रिस्पॉन्सेज जो है वो एग्जामिनर ढूंढने की कोशिश करेगा
कि क्या आपने लेसन को क्रिएटिवली क्रिटिकली अंडरस्टैंड किया है, और जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन जो होगा वो कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन होगा, नॉट नेसेसरी वो टेक्स्ट बुक से लिया जाएगा, वो कहीं और से भी वो खुद ला सकते हैं क्वेश्चन। हालांकि कंटेंट्स जो टेक्स्ट बुक के हैं वो तो सेम ही होते हैं, क्वेश्चन वही होगा जो लेसन में है उसी को रिलेट करेगा, लेकिन क्वेश्चन का अंदाज जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है। सो क्वेश्चन जो है वो कुछ पूछ सकता है और उस आंसर को आपको तभी हासिल करने में आसानी मिलेगी जब आपने लेसन के हर गोशे, हर एस्पेक्ट, हर डोमेन, हर डायमेंशन पे नजर रखी होगी। And then we have 1 out of 2 long answer type questions on the play. One play होगा जो है हमारे पास जो प्ले है विस्टास बुक में, उस प्ले से इनफैक्ट वी हैव अ फ्यू सैम्पल्स फ्रॉम फ्लेमिंगो आल्सो, एंड देन उस प्ले से हमें चेक करना है कि उसका प्लॉट होगा या कैरेक्टराइजेशन होगा, सेटिंग होगी, लिटरेरी डिवाइस होंगे, क्रिटिकल थिंक होगी। 120 से 150 वर्ड्स का एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा, उसमें भी आपको चॉइस मिलेगी, एक करना होगा, 5 मार्क्स जो है उसके करने होंगे, आप हासिल कर सकते हैं। 30 मार्क्स जो हैं आपको लिटरेचर रीडर से भी मिल जाएंगे। सो व्हाट डज दिस टेल अस? दिस टेल्स अस दैट लिटरेचर और बुक्स जो हमारे हैं, पोएट्री जो हमारी है, उस पोएट्री में हम हासिल कर सकते हैं, वी कैन ऑब्वियसली गेट 30 मार्क्स, एंड देन जो हमारा बाकी वाला पार्ट है वेयर इन वी हैव ग्रामर, राइटिंग स्किल्स, उसके हम 50 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। 50 + 30 is equal to 80, 20 marks internal assessment is equal to 100 marks. That is mission 100 for us. Now, what are we going to do in lecture 1? We are going to cover 8 marks of grammar. We'll try to cover up 8 marks of grammar. आपने ऑलरेडी क्लास 11th में ही पढ़ा है, 11th के लेक्चर्स भी मौजूद हैं बाज़ाब्ता तौर, अगर आपने पढ़े हैं, ऑनलाइन कैप्सूल कोर्स आपने लिया है मेरा, तो वंस अगेन आपको आसानी हो जाएगी। हम वही चीज़ पढ़ेंगे विद सम एडिड कॉन्सेप्ट सो दैट 12th क्लास में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ जाए। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन फाइंड in what's called the grammar part, the 8 marks part मैं जो ले लूंगा, पहले ही हम ग्रामर और राइटिंग स्किल्स खत्म करेंगे, we'll take up these 50 marks, हम पहले 50 मार्क्स का खात्मा करेंगे, उसके बाद जो बाकी 30 मार्क्स है लिटरेचर के, they will be covered in the rest of the lessons, and obviously in 12 lessons time we'll vanish, we'll ensure that this whole thing vanishes away for us and we are in a position to get those 100 marks. Remember, notes will be provided, guiding material will be provided by me completely. You don't need to panic. Please don't press the panic button, but be focused, be fixed, have your notebooks in front. Whatever is taught, make sure you are jotting down all important things for the examination. So these are 12 important lectures for us. I'll also discuss the question paper with you, the latest pattern of the question paper, so that आपको आसानी हो जाए। लेकिन ये 12 घंटे जो हैं, ये 12 सेशंस जो हैं, इन पे आपको दिल और जान लगानी है, और इंग्लिश जो है 100 मार्क्स का जो ये पूरा जो सिस्टम है, ये आप अपने पास जो है ऑन करेंगे once you have full focus and attention. For doubts and clarity, please make sure that you get in touch with me offline, online, wherever you feel, whatever way you feel convenient for you. Please come to us. Sky Class is ready for you to clarify your doubts as well. So we get started with the items. मैं आपको फिर से बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें जो हैं जो आपको ग्रामर में करनी है. You have tenses, you have pronouns, you have narration, you have active and passive voice, you have prepositions and you have conjunctions. So obviously हमारे लिए easy चीज जो होगी that will be tenses का रिविजन एक करेंगे. So पहले हम tenses का रिविजन करेंगे और उसके साथ साथ जो narration और passive है इसको हम जोड़ेंगे, because tense, narration और passive ये आपस में इंटरलेटेड चीजें हैं, तो तीनों को हम जो है इंटीग्रेट करेंगे. तो टेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए. दैट इज द 3 टेंसेस दैट वी हैव इन इंग्लिश. आपने पढ़े भी होंगे, नोटबुक्स पे मौजूद भी होंगे. टेंस जो है वर्ब टेंस की जब बात करते हैं, वी हैव 3 टेंसेस. वी हैव 4 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब: प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. फॉर्म्स और टेंसेस को आपस में कंफ्यूज ना करिए. सपोज फॉर्म की अगर बात करेंगे, वी हैव V1 that is go, we have V2 that is went, we have V3 that is gone, and we have V4 that is going. इसी को हम बोलते हैं present form, past form, past participle form. लिखा होगा हमने
पढ़ा भी होगा, जिससे मेरे पास पढ़ा हुआ है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, these are the forms. Forms means shapes, V1, V2, V3, V4. When we give four forms to a verb, we call it conjugation of verb. Remember, verb forms are very important for you to be remembered. मैं चाहूंगा कि आप चैट जीपीटी पे या गूगल पे लिखें आई वॉन्ट 500 कॉमनली यूज्ड वर्ब फॉर्म्स, 4 फॉर्म्स, वहां पे एक लिस्ट निकलेगा, उसका प्रिंट आउट निकालिए और कॉमनली यूज्ड वर्ब फॉर्म्स जो है वो प्रिपेयर कर लीजिए। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, shrink, shrank, shrunk, shrinking, see, saw, seen, seeing, choose, chose, chosen, choosing, sing, sang, sung, singing, ring, rang, rung, ringing, fly, flew, flown, flying, flow, flowed, flowed, flowing, teach, taught, taught, teaching, bring, brought, brought, bringing, blah 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 blah। ये 500 verbs या 200-300 verbs जो है कॉमनली यूज जो है आपके पास होने चाहिए। क्यों ये वर्ब्स हमें चाहिए? टेंसेस में जरूर चाहिए। अगर वर्ब आपके पास नहीं तो टेंस का ख्वाब जो है इसको आप शर्मिंदा ताबीर नहीं कर सकते। याद रखिए, जब तक फॉर्म्स आपके पास नहीं है यू विल नॉट हैव एनी यूज ऑफ द रूल्स। रूल्स की वैल्यू तब है जब फॉर्म्स है। हर एक मकान को है मकी से शर्फ हासिल, मजनू मर गया तो जंगल उदास है। अगर फॉर्म है तो टेंस है, फॉर्म नहीं है टेंस का कोई काम नहीं है। आगे पता चलेगा। टेंसेस जो है वो 3 है। वी हैव 3 टेंसेस एंड व्हाट आर दोज 3 टेंसेस? वी हैव द प्रेजेंट टेंस, वी हैव द पास्ट टेंस एंड वी हैव द फ्यूचर टेंस। टेंस और फॉर्म में क्या फर्क है? टेंस बताता है किस वक्त काम हुआ, फॉर्म बताती है शक्ल क्या है वर्ब की। शक्ल अलग बात है, वक्त अलग बात है। Tense means time, the present tense, all the actions of the present, the past tense, all the actions gone by, the future tense, वो actions जो आने वाली हैं। ग्रामेरियंस बोलते हैं 2 ही टेंसेस हैं, प्रेजेंट टेंस 2 ही हकीकतें, जो चीज़ हम देख रहे हैं वो हकीकत, जो चीज़ हमारी आंखों ने देखी है वो भी हकीकत, जो चीज़ आने वाली है उसके बारे में क्या पता कल हो ना हो, दैट इज फ्यूचर टेंस। तीनों टेंसेस के 4 शेप्स हैं, आपको पता होना चाहिए। द 4 शेप्स दैट वी हैव डिस्कस्ड लास्ट ईयर ऑल्सो। वी हैव प्रेजेंट सिंपल, और रूल में यहां पे लिख लेता हूं V1 वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल। आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट सिंपल जो होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, चाहे हेल्पिंग वर्ब हुआ, चाहे मेन वर्ब हुआ, चाहे दोनों हुए, दोनों प्रेजेंट सिंपल में। सपोज आई रिंग द बेल, आई रिंग द बेल, आप यहां पे देख सकते हैं मेरा बेटा, दिस इज वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म। देन आई से इसका नेगेटिव, आई डू नॉट रिंग द बेल, इसी का नेगेटिव, आई डू नॉट रिंग द बेल। यहां पे हेल्पिंग वर्ब डू, ये भी फर्स्ट फॉर्म, रिंग यहां पे मेन वर्ब, ये भी फर्स्ट फॉर्म। इसी का मैं इंटरोगेटिव बनाऊंगा, डू आई रिंग द बेल, डू आई रिंग द बेल। यहां पे इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, डू भी हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रिंग भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर कॉमन डिनोमिनेटर देखा जाए तो V1। सो प्रेजेंट सिंपल इज V1। रिमेंबर मैंने आपको बोला है हेल्पिंग ऑफ लास्ट ईयर भी, इज, एम, आर, ये हैं हेल्पिंग वर्ब बी की फर्स्ट फॉर्म्स। एंड देन इज, एम का पास्ट वॉज, आर का पास्ट वर, ये है हेल्पिंग वर्ब बी की सेकेंड फॉर्म्स। उसके बाद बी की थर्ड फॉर्म बीन, दैट इज V3। उसके बाद बी की फोर्थ फॉर्म बीइंग, दैट इज V4। दीज आर वर्ब बी, आपको पता होना चाहिए दीज आर वर्ब बी, ये बी के बच्चे हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, बीन, बीइंग। उसी के साथ हमारे साथ है डू और डज, ये है V1, इनका सेकेंड फॉर्म है डिड। इसी के साथ हमारे पास है हैव और हैज, ये भी है V1, इनका सेकेंड फॉर्म है हैड। What is the difference between do and does? Person. I do, we do, you do, they do, boys do, girls do, plurals do. He does, she does, it does, singular does. I have, we have, you have, they have, boys have, girls have, teachers have. He has, she has, it has, boy has, girl has, singular has. Helping verbs का लेखा जोखा आपके पास होना चाहिए। प्रेजेंट सिंपल हम पढ़ रहे हैं, वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म। जरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से हमने क्या कहा था लास्ट ईयर, पता है आपको? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, शबाश, मैं सुन रहा हूं। आप वहां पे
बाज़ब्त तो रिवाइज कर रहे हैं, मन ही मन में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्लास 10 से पढ़ते आए हैं. इज, एम, आर प्लस इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब. याद रखें, कॉन्टिन्यूअस, इन प्रोसेस, present simple, routine actions, habitual actions. I go to school every day, habitual action. Nurses take care of the patients, habitual general action. General actions के लिए the sun shines, the earth moves round the sun. General actions, universal truths के लिए present simple. और present continuous की बात करें तो actions in process. Somebody is knocking at the door. Action process. Don't disturb me. Don't disturb me. I'm reading a book. Action in process. Look, the sun is shining brightly. Action in process. Hey, the boys are playing cricket. Action process. Whenever there is action process, the word continuous should come to your mind. That's why present continuous is, am, are plus ing form of the verb. अगर हमने वहाँ कहा I ring the bell, present continuous में कहेंगे I am ringing the bell. अगर हमने वहाँ कहा he speaks good English, present continuous में कहेंगे he is speaking good English. अगर हमने वहाँ कहा boys play cricket, present continuous में कहेंगे boys are playing cricket. Is, am, are plus ing form of the verb. So, what is present perfect? Present perfect says have or has plus V3. याद रहे हम 8 मार्क्स के लिए लड़ रहे हैं इस लेक्चर में. 8 marks. Edit the following passage. Have or has plus third form. I have taken tea. She has gone to school. He has rung the bell. I have written a letter. She has taught good English. Have or has plus third form. Third form, once again form. जो मैं बोल रहा था, forms को आपको याद करना पड़ेगा. Present perfect कहाँ यूज होता है? Recently finished actions के साथ, और उन actions के साथ जिनका ताल्लुक present के साथ हो. एक मिसाल दे देता हूँ. He has just arrived. This is recently finished action. I have just taken my meals. This is recently finished action. और कोई ऐसी एक्शन होती है जो अगरचे रिमोट पास्ट में हो गई हो, लेकिन उसका लिंक प्रेजेंट के साथ है, इसका कनेक्शन प्रेजेंट के साथ है, उसकी वैलिडिटी प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया जा सकता है. सपोज आई हैव डन माई मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश. मैंने मास्टर्स डिग्री 15 साल पहले की है, लेकिन इट इज दिस मास्टर्स डिग्री दैट इज मेकिंग मी एलिजिबल नाउ, दैट इज वैलिड नाउ. आई हैव लॉस्ट माई पर्स एंड आई एम वरीड. मैंने लूज किया पर्स 2 दिन पहले, लेकिन आई एम वरीड. प्रेजेंट में मैं वरीड हूं, मैं कंसर्न्ड हूं. सो अगर मैं उस एक्शन का लिंक प्रेजेंट के साथ है तो आई विल यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट. प्रेजेंट परफेक्ट को अक्सर लोग धोखा खाते हैं पास्ट सिंपल के साथ. आई हैव गॉन टू स्कूल येस्टरडे, दैट इज खिच खिच ऑफ इंग्लिश. यू कैन नॉट से आई हैव गॉन टू स्कूल येस्टरडे. हो सकता है एग्जामिनर का क्वेश्चन लिखे वहां पे स्टेटमेंट में आई हैव गॉन टू स्कूल येस्टरडे. रॉन्ग. बिकॉज yesterday जो है वो पास्ट सिंपल है. पास्ट सिंपल के लिए सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब चाहिए. आई वेंट टू स्कूल yesterday. I did not go to school yesterday. Complete actions the past जो है वो past simple में यूज होती हैं, और जिन actions का ताल्लुक present के साथ हो, link, validity, eligibility present के साथ हो, connect present के साथ हो, that is present perfect tense. And then we move on to present perfect continuous tense, that is have been, has been plus ing form of the verb plus since or for. Have been, has been plus ing form plus since or for. Since और for को मैं एग्जामिनेशन स्पेसिफिक पॉइंट मान लेता हूं. स्टार बनाइए, इसको वहां पे अंडरलाइन कर लीजिए. हैव बीन, हैज बीन प्लस ing form of the verb. I ring the bell, present simple. I am ringing the bell, present continuous. I have rung the bell, present perfect. I have been ringing the bell for 5 minutes. I have been reading this book since Monday. Now remember, for को बोलते हैं point period of time. Period of time. For is period of time. कितना वक्त, कितने सेकंड, कितने मिनट, कितने घंटे, कितने दिन, कितने महीने, कितने साल, कितनी सदियां. I've been waiting for you for 2 minutes, for 2 seconds, for 2 hours, for 2 days, for 2 months, for 2 weeks, for 2 centuries, for 2 years. लेकिन सिंस को बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम. कौन सा वक्त? o'clock टाइम. आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 10 o'clock.
आई बीन, हम नहीं बोल सकते आई बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 10 o'clock, आई बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मंडे, नेम्स ऑफ द डेज के साथ, सिंस ट्यूसडे नेम्स ऑफ द डेज के साथ, सिंस अप्रैल नेम ऑफ द मंथ के साथ, सिंस मार्च नेम ऑफ द मंथ के, सिंस 2020 नेम ऑफ द ईयर के साथ, सिंस लास्ट संडे पॉइंट है, सिंस 1:30 AM पॉइंट है, लेकिन पीरियड है कितना वक्त, वहां पे है कौन सा दिन, यहां पे है कितने दिन, वहां पे कौन सा महीना, यहां पे कितने महीने, वहां पे कौन सा साल, यहां पे कितने साल. सो सिंस 2024 यहां पे फॉर 5 years, सिंस मंडे यहां पे फॉर 2 days, सिंस व्हाट्स कॉल्ड 10 o'clock यहां पे फॉर 5 minutes, फॉर 10 minutes. आई होप दैट्स क्लियर. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंस एंड फॉर. I write a letter, present simple. I am writing a letter, present continuous. I have written a letter, present perfect. I have been writing a letter for 5 minutes. वो काम जो शुरू हुआ in some time in the past और अभी भी present में continuous है, चल रहा है. मैंने 5 मिनट पहले लेसन शुरू किया, अभी भी लेसन चल रहा है. I have been teaching you for 10 minutes. That means 10 मिनट हो गए और अभी भी प्रेजेंट में ये काम अनफिनिश्ड है, चल रहा है. These are the present 4 shapes. अगर आपको प्रेजेंट के क्लियर हो गए, पास्ट इट हैज टू बी अ केक वॉक फॉर यू. बहुत ही आसान है. जिसको प्रेजेंट क्लियर हो गया, पास्ट भी उसको क्लियर हो जाएगा. जरा बताइए क्या करेंगे. प्रेजेंट सिंपल में हमने कहा वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सिंपल में कहेंगे वर्ब इन सेकंड फॉर्म. प्रेजेंट सिंपल में कहा आई सिंग ए सॉन्ग, पास्ट में कहेंगे आई sang a song. प्रेजेंट में कहा आई डू नॉट रिंग द बेल, पास्ट सिंपल में कहेंगे आई डिड नॉट रिंग द बेल. मुझे पता है आपके मन में क्या चल रहा है. सर V1 को V2 हो रहा है, डू को डिड हो गया, हमने रिंग को रैंग क्यों नहीं किया? यही सवाल है. टिक कर लीजिए एग्जामिनेशन के लिए. हो सकता है एग्जामिनर आपको डिड भी देगा और वर्ब को फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में रखेगा, 2 पास्ट इकट्ठे रखेगा. द पॉइंट इज फॉर यू टू लर्न वी डू नॉट हैव 2 पास्ट इन द सेम सेंटेंस. There is a collision. It's a completely wrong statement to have 2 pasts together. 2 pasts cannot thrive together in the single sentence. जब did use होता है, उसके बाद हम main verb को वापस अपनी first form में लिखते हैं. Reason clear है, हम 2 pasts को इकट्ठे नहीं लिख सकते. You can't say I did not understood. That is kish of English. I did not understand. You can't say did I told you. That is massacring of English. Did I tell you is the correct one. He did not went to school. Wrong. He did not go to school. Did you rang the bell? Wrong. Did you ring the bell? I didn't drank the water. Wrong. I didn't drink the water. He did not taught me. Wrong. He did not teach me. Important point. उसके बाद past simple आपको मैंने बताया completed actions of the past के लिए use होता है. And then we have what's called the past continuous. मैं किताब पढ़ रहा हूं या रही हूं. I am reading a book. जब आपने मुझे फोन किया, मैं किताब पढ़ रहा था. पास्ट की बात है, बाकी वहां भी प्रोसेस में एक्शन है, यहां भी प्रोसेस में एक्शन है. When you called me, I was reading a book. आपको अब समझ आ गया होगा रूल क्या है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का. was और were प्लस ing फॉर्म ऑफ द वर्ब. वहां पे था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में is am are प्लस ing फॉर्म. यहां पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में was और verb प्लस फर्स्ट फॉर ing फॉर्म. आपको पता है is का पास्ट was, am का पास्ट was, are का पास्ट were. और उसके बाद पास्ट परफेक्ट, वहां पे था have और has प्लस थर्ड फॉर्म. What is the second form of have or has? That is had plus V3. So this is past perfect, जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में पास्ट इन पास्ट टेंस. जब 2 एक्शंस पास्ट में हो जाए, जो एक्शन पास्ट की पहले हो जाए, दैट्स कॉल्ड पास्ट इन पास्ट, पास्ट का पास्ट. सपोज when I reached, the class had begun. आप अंदाजा कर लीजिए 2 एक्शंस हो गए. मैं पहुंच गया और क्लास लग गई, दोनों पास्ट की बात है. मेरा पहुंचना भी पास्ट,
क्लास का स्टार्ट होना भी पास्ट, दोनों पास्ट है, लेकिन एक के बाद दूसरी एक्शन हो गई। पहले क्या हुआ, पहली वाली एक्शन क्या है, एक्शन 1 क्या है, क्या क्लास पहले शुरू हुई, क्या मैं पहले पहुंच गया? जरूर आप सोच रहे हैं कि क्लास पहले शुरू हो गई, उसके बाद मैं पहुंच गया। तभी जो क्लास का शुरू होना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बिगिन, बिगैन, बिगन, हमने पास्ट परफेक्ट लिखा, बिकॉज़ दैट्स एक्शन 1। ये एक्शन 1 है, उसके बाद मैं पहुंच गया। जब मैं पहुंचा, दिस इज V2, चोली दामन का साथ, नेल एंड अ फ्लैश रिलेशनशिप। जब पास परफेक्ट होता है उसके साथ पास सिंपल साथ होता है। जब मैं वहां पहुंचा, क्लास शुरू हो चुकी थी, सो दैट इज पास्ट इन पास्ट टेंस। और उसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दैट इज हैड बीन प्लस इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सिंस और फॉर। I have been taking tea for 5 minutes. When you came, जब आप आए, I had been taking tea for 5 minutes. उस वक्त मुझे 5 मिनट हो गए थे और मैं उस वक्त चाय पी ही रहा था। हैं और था, that is the difference. Otherwise, the sense of the tense is the same. Ditto. So, प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल इजी है। V1, V2, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज MR प्लस इंग फॉर्म द वर्ब, पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाज अ वर्ब प्लस इंग फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट हैव और हैज प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैव बीन और हैज बीन प्लस इंग फॉर्म, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैव बीन, हैड बीन प्लस इंग फॉर्म प्लस सिंस और फॉर। क्लास 11th के लेसन्स को याद कर लीजिए, बिल्कुल वही है, आप रिवाइज कर रहे हैं। उन वीडियोस को भी अगर हमने डाउनलोड किया हुआ है, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। ये भी वही चल रहा है, लेकिन एक रिफ्रेश्ड अंदाज में चल रहा है। एंड देन वी हैव फ्यूचर टेंस, जिसके बारे में ग्रामरियंस कहते हैं कि देयर इज नो कैटेगोरिकल सेंस ऑफ द फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के फिर भी हम 4 शेप्स पढ़ेंगे, उनके रूल्स पढ़ेंगे। फ्यूचर टेंस की पहली शेप जो है, दैट इज फ्यूचर सिंपल। और फ्यूचर सिंपल में शैल और विल प्लस V1, आई और वी के साथ शैल, बाकियों के साथ विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई शैल गो टू स्कूल। स्पोकन इंग्लिश में विल ज्यादा डोमिनेट करता है, रिटन इंग्लिश में शैल डोमिनेट करता है। ही विल टेक टी, आई शैल गो टू स्कूल, वी शैल ईट फूड, द बॉयज विल प्ले क्रिकेट। एंड देन वी हैव फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। मैं रूल लिखता हूं, आप सेंटेंस खुद बना सकते हैं। शैल बी और विल बी प्लस इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब। नाउ अगर हमने यहां कहा आई शैल गो टू स्कूल, इसको क्या बनेगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। यस, बराबर आप ठीक बोल रहे हैं। आई शैल बी एंड देन इंग फॉर्म द वर्ब गोइंग टू स्कूल। अगर मैं वहां कहा ही विल रिंग द बेल, जरा ट्राई कर लीजिए, ही विल रिंग का क्या बनेगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। शाबाश, वेरी गुड। आपके पास है 2 सेकेंड का समय सोचने का। यस, ही विल बी एंड देन ing form ringing the bell. So I shall take tea, I shall be taking tea. He will teach English, he will be teaching English. She will write a letter, she will be writing a letter. We shall go on an excursion, we shall be going on an excursion. उसके बाद future perfect यहां लिख लेता हूं। future perfect जो है, we have shall have or will have plus V3. shall have or will have plus V3. I shall have gone to school. She will have written a letter. और उसके बाद future perfect continuous, और future perfect continuous जो है shall have been or will have been plus ing form of the verb. I shall go to school, I shall be going to school, I shall have gone to school. अब क्या बोलेंगे? I shall have been going to school. He will write a letter, he will be writing a letter, he will have written a letter, he will have been writing a letter. So, present से बराबर future, present simple से future perfect continuous तक का जर्नी हमने तय कर लिया। Present simple V1, present continuous is MR plus ing form, present perfect have or has plus third form, present perfect continuous have been or has been plus ing form plus since or for. Past simple
V2, past continuous, was a verb plus ing form, past perfect, had plus third form, past perfect continuous, had been plus ing form plus since or for. Future simple, shall or will plus first form, future continuous, shall be or will be plus ing form, future perfect, shall have or will have plus third form, future perfect continuous, shall have been, will have been plus ing form plus since or for if necessary. So दैट इज द लेखा जोखा ऑफ द टेंसेस. टेंस आपके क्लियर हैं तो ऑब्वियसली आप कर पाएंगे नरेशन. अगर टेंस क्लियर है तो आप नरेशन कर पाएंगे. नरेशन के इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, टेक्निकल पॉइंट्स जो हमें करने हैं एग्जाम के रिलेटेड, जो आपको वहां पे आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे. आपको पता होना चाहिए कि नरेशन की दो रूल्स है. वी आर गोइंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, आपने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में भी. और डायरेक्ट में हम हमेशा एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर यूज करते हैं. सपोज अगर मैं यहां पे लिखूं ही सेज टू मी कॉमा कॉमर्स बिगिन आई टेक टी. अब ये वाला सेंटेंस जो है आई टेक टी, जिसको आप बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और इसको इस वाले पार्ट को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. ये वाला पार्ट जो है इसको मैंने कॉमास में रखा है. क्यों? बिकॉज दे आर द एक्चुअल वर्ड्स, दे आर द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. सो एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर जो है, ये एक्चुअल वर्ड्स हमेशा नरेशन के डायरेक्ट स्पीच में लिखे जाते हैं. और जब इंडायरेक्ट की बात आती है तो कॉमास हट जाते हैं. यू डोंट यूज एनी कॉमर्स इन द इंडायरेक्ट स्पीच. सपोज कल को आप एग्जामिनर में देखेंगे, एग्जामिनेशन में देखेंगे, एग्जामिनर ने इंडायरेक्ट में स्टेटमेंट लिखा होगा लेकिन कॉमर्स रखे होंगे, और आपको पता चलना चाहिए कि नहीं जी ये तो इंडायरेक्ट स्टेटमेंट, कॉमर्स की तो यहां आवश्यकता ही नहीं, उनको हटाना पड़ेगा. हो सकता है वही एरर होगा. और उनने डायरेक्ट में स्पीच लिखा होगा और कॉमर्स नहीं रखे होंगे. और यहां पर भी हो सकता है कि एग्जामिनर ये चाहे आपको देखना कि क्या आप कॉमर्स लगाएंगे कि नहीं. सो इसका पंक्चुएशन के साथ भी वास्ता है, नरेशन के साथ भी वास्ता है. दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट टेंस. और अगर हम सेज को सेड बनाएं, ही सेड टू मी, दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस. और अगर हम फ्यूचर बनाएं, ही विल से टू मी, दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब इन फ्यूचर टेंस. से प्रेजेंट टेंस, सेड पास्ट टेंस, विल से फ्यूचर टेंस. और रूल नंबर 1 जो है, जो आपको लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया है, रूल 1 बोलता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त नो चेंज. ये रूल नंबर 1 है. सपोज he says to me commas begin I take tea commas close. जब इसको इंडायरेक्ट में ले जाएंगे तो he step 1 says को बनेगा tells, he tells me, this is S1. उसके बाद commas हट जाएंगे, उनके बदले that is S2. उसके बाद person change हो जाएगा, he tells me that. उसके वर्ड्स हैं, अपने आप को उसने I बोला, हमारे लिए वो क्या है? हमारे लिए वो he है. therefore he tells me that he. और no change, that means take tea जो टेंस है वो अपने ही टेंस में रहेगा. take is V1 is present simple और present simple ही रहेगा. therefore he takes tea. आप बोलेंगे सर s क्यों आपने लाया? क्योंकि आपको पता होना चाहिए he के साथ, she के साथ, it के साथ और सिंगुलर्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म s और es लेती है. You can't say he take, that's wrong. You can't say he go, that's wrong. You can't say she write, that's wrong. You can't say it rain, that's wrong. He goes, she writes, it rains, that's correct. तो बराबर वही होगा फ्यूचर टेंस के साथ भी. अगर ऐसा सेंटेंस होता he will say to me commas begin I take tea, जरा क्या होता? रूल बोलता है नो चेंज. अगर प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब हो, आगे कोई चेंज नहीं होगा, वापस बनेगा ही विल टेल मी स्टेप 1 कॉमर्स हटेंगे दैट, उसके बाद ये S2 पर्सन चेंज हो जाएगा. आई कौन है? बोलो ही. स्टेप 3 वंस अगेन नो चेंज, टेक्स टी. एस लगानी हमारी मजबूरी है. रिमेंबर एस लगाने से या es लगाने के से वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होती. टेक भी फर्स्ट फॉर्म, टेक्स भी फर्स्ट फॉर्म. आई टेक टी भी प्रेजेंट सिंपल, ही टेक्स टी भी प्रेजेंट सिंपल. आप
टेक को टुक नहीं बना सकते, दैट्स पास्ट सिंपल. आप टेक को विल टेक नहीं बना सकते, दैट्स फ्यूचर सिंपल. रूल बोलता है नो चेंज, सिर्फ पर्सन चेंज हो जाएगा. सो रूल नंबर 1 क्लियर बोलता है व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस देयर इज नो चेंज इन द रिपोर्टेड स्पीच. मगर जो नेक्स्ट वाली चीज है जो आपको रूल नंबर 2 में मिलेगी, वहां पे आपको ध्यान देना है. वो रूल बोलता है व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, दैट मीन्स सेड, तो इनडायरेक्ट में चेंजेस हो जाती हैं. और वो चेंजेस आपको याद रखनी है. तमाम प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा. लाइक प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल बन जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट बन. कितना इंपॉर्टेंट टेंस है. अगर किसी बच्चे के पास टेंस ही क्लियर नहीं है तो वो कैसे कन्वर्ट करेगा प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल. उसको कैसे पहचान हो जाएगी ये प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट है. टेंस वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्ब की फॉर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट है. बताता हूं आपको, वर्ब फॉर्म्स पे कंट्रोल, टेंस के रूल्स पे कंट्रोल आपको होना चाहिए. और अगर पास्ट सिंपल हुआ, वहीं से पास्ट सिंपल हुआ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट. अगर वहीं से पास्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अगर वहीं से पास्ट परफेक्ट हुआ या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ तो नो चेंज. अगर वहां से विल हुआ तो वुड, शेल हुआ तो शुड, कैन हुआ तो कुड, मे हुआ तो माइट, दिस हुआ तो दैट, इट हुआ तो दैट, नाउ हुआ तो देन, दस हुआ तो सो, टुडे हुआ तो दैट डे, yesterday हुआ तो द प्रीवियस डे, tomorrow हुआ तो द फॉलोइंग डे, यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ तो नो चेंज, अनचेंज्ड, proverb हुआ अनचेंज्ड, फैक्ट हुआ अनचेंज्ड, रूटीन हुई अनचेंज्ड. पर्सन्स चेंज हो जाएंगे बाबा, पर्सन्स तो चेंज होने हैं, लेकिन इन रूल्स का पालन करना है. एक मिसाल से समझाऊंगा, सारा क्लियर हो जाएगा. ही सेड टू मी, कॉमर्स बिगिन, आई राइट. अब मैं इन मिसालों से आपको समझाऊंगा. ही सेड को बनेगा टोल्ड, ही टोल्ड मी, स्टेप 1. कॉमर्स हटेंगे दैट, S2 पर्सन चेंज हो जाएगा. आई कौन है, बोलो ही. S3 राइट कौन सा टेंस है, बोलो प्रेजेंट सिंपल. रूल क्या बोलता है, रूल नंबर 2 बोलता है प्रेजेंट सिंपल चेंज टू पास्ट सिंपल. पास्ट बनाने के लिए राइट की सेकंड फॉर्म. अगर ये ऐसे होता, ही सेड आई एम राइटिंग, तो वापस क्या बनता, ही टोल्ड दैट ही वॉज राइटिंग. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस. अगर ये ऐसे होता, ही सेड आई हैव रिटन, प्रेजेंट परफेक्ट. रूल बोलता है पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. ही टोल्ड दैट ही हैड रिटन. अगर ऐसे होता, ही सेड आई हैव बीन राइटिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. किस में चेंज होता, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ही टोल्ड दैट ही हैड बीन राइटिंग. अगर ये वहीं से होता, ही सेड टू मी, कॉमर्स बिगिन, आई रोट. बताओ ये कौन सा टेंस है, बोलो सर ये तो वहीं से पास्ट सिंपल है. और पास्ट सिंपल किस में कन्वर्ट होता है, past simple converts into past perfect. So वापस क्या आ जाएगा, he told that he had written. अगर ऐसे होता, he said to me I was writing. अगर वहीं से past continuous होता तो किस में कन्वर्ट होता है, past continuous change into past perfect continuous. Very good. तो वापस आता, he told that he had been writing. अगर वहीं से होता past perfect, he said I had written, no change. He told that he had written. He said I had been writing, no change. He told that he had been writing. He said I will go to school. He told that he would go to school. Will को would. He said I shall take. He told that he should take. He said I can do it. He told that he could do that. It को बनेगा that. He said I may come. He told that he might come. He said I am going to school today. He told that he was going to school that day. He said
I went to school yesterday. He told that he had gone to school the previous day. He said, I will go to school tomorrow. He told that he would go to school the next day. He said, the earth moves round the sun. He told that the earth moves round the sun. No change. He said, truth is bitter. He told that truth is bitter. He said, honesty is the best policy. He told that honesty is the best policy. He said, God sees the truth but waits. He told that God sees the truth but waits. He said, India got independence in 1947. He told that India got independence in 1947. Fact. He said, I go to school daily. Routine. He told that he goes to school daily. Not he went to school daily. क्योंकि daily ने आपको क्या बताया? ये routine है. Routines भी change नहीं हो जाती. हो सकता है कि वहां पे एक सेंटेंस हो, स्टेटमेंट हो, वहां पे डेली हो, रूटीन हो और यहां से पास्ट टेंस यूज किया गया हो और एग्जामिनर ये चाहता हो जानना क्या बच्चे को पता है कि रूटीन्स चेंज नहीं होती, दे रिमेन इन द प्रेजेंट टेंस. सो दैट इज वन साइड ऑफ द स्टोरी. उसके बाद अगर यही सवाल आपको आ गए इंटरोगेटिव फॉर्म में, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट यहां पे इंटरोगेटिव जो एग्जाम स्पेसिफिक मैं समझता हूं, आपको पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन यस नो टाइप हुआ, if the question is yes no type, suppose we have a question, he said to me, commas begin, do you go to school? अब आप बताइए मुझे ये कौन सा सवाल है? Is it a yes no question or WH question? ये तो yes no question है, क्योंकि yes no question वो क्वेश्चन होते हैं जो जिनका जवाब हाँ या ना में होता है. डू यू गो टू स्कूल, आपको पता होना चाहिए रूल सेम है, कुछ चेंजेस है इंट्रोगेटिव्स में, वो आपको याद रखनी है. पहली बात, सेड को टोल्ड नहीं बनता, सेड को बनता है आस्क्ड. सो ही आस्क्ड मी. उसके बाद जो कॉमर्स हट के दैट बनाया जाता था, यस नो क्वेश्चन में दैट नहीं लगता, यस नो क्वेश्चन में इफ और वेदर लगता है. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर आपने कल स्टेटमेंट में वहां एडिट द फॉलोइंग पैसेज में एक ऐसा सेंटेंस देखा जहां पे दैट भी लगा था और इफ और वेदर भी लगा था, आपको दैट हटा के इफ और वेदर लगाना है अगर वो क्वेश्चन हुआ आगे. सो ही आस्क्ड मी इफ और वेदर. दिस इज स्टेप 2, दिस इज स्टेप 1. और उसके बाद पर्सन, यू कौन है? आई. उसने मुझसे पूछा डू यू गो टू स्कूल, यू कुछ, सो उसने मुझसे पूछा इफ और वेदर आई. उसके बाद टेंस का रूल वैसे ही चेंज हो जाएगा जैसे हम कर रहे हैं. डू और गो जो है दैट इज प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल चेंज टू पास्ट सिंपल. सो व्हाट विल से, ही आस्क्ड मी इफ और वेदर आई वेंट टू स्कूल. और याद रखें इंडायरेक्ट में वी डोंट यूज नोट ऑफ इंटरोगेशन. इंडायरेक्ट में क्यों? बिकॉज इंडायरेक्ट में क्वेश्चन नहीं रहता. इंडायरेक्ट में क्वेश्चन नहीं रहता. व्हेन द क्वेश्चन कन्वर्ट्स इनटू अ स्टेटमेंट वी डोंट नीड टू पुट अ नोट ऑफ इंटरोगेशन इन द इंडायरेक्ट सेंटेंस. सो स्टेप्स क्या याद रखे आपने? पहला स्टेप सेड को आस्क्ड. दूसरा स्टेप अगर ये यस नो क्वेश्चन है तो कॉमास के बदले इफ और वेदर लगेगा. तीसरा स्टेप जो है पर्सन आएगा. और चौथा स्टेप जो है टेंस के रूल का पालन हो जाएगा. अगर यहां पे यस नो के बदले डब्ल्यूएच क्वेश्चन हुआ, सपोज ही सेड टू मी, कॉमास बिगिन, व्हेन डू यू गो टू स्कूल. अब देखो यहां पर when है. WH questions are those questions which begin with W words like what, which, when, who, where, how. These are the WH words. So वापस क्या आएगा? said को asked, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने किया. और दूसरा कॉमास के बदले हम yes no questions में if और weather लगाते थे, लेकिन यहां पे if और weather नहीं लगेगा, यहां पे W word नीचे आ जाएगा. He asked me when. यह है S2. उसके बाद वही होगा जो हम करते हैं. पहले पर्सन, यू कुछ, आई. उसके बाद रूल, टेंस का रूल, डू और गो जो है दैट इज प्रेजेंट सिंपल. सो प्रेजेंट सिंपल चेंज टू पास्ट सिंपल. इफ और वेदर, सॉरी, ही आस्क्ड मी व्हेन आई वेंट टू स्कूल. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यस नो वाला नरेशन और WH वाला नरेशन? एक ही डिफरेंस है. सेड को आस्क्ड वहां भी होता, यहां भी होता. दैट जो है, जो हम नॉर्मली लगाते थे वो हम हटाते हैं
और yes no में हम कॉमास को रिप्लेस करते हैं if और whether से। WH में हम W वर्ड को नीचे लाते हैं कॉमास के बदले, चाहे वो W वर्ड when हो, who हो, where हो, what हो, how हो, वही नीचे आ जाता है। W वाले क्वेश्चंस में हम if और whether का यूज नहीं करते। एग्जाम पॉइंट है ये, वहां पे हो सकता है कि एग्जामिनर ने ऐसी सिचुएशन बताई होगी जहां पे इफ और वेदर को गलत तरीके से यूज किया गया होगा और दैट को गलत से यूज किया होगा, तो आपको चेक करना पड़ेगा। और कभी कभी उसने नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगाया होगा जिसको रिमूव करना होगा, या कभी कभी उसने नोट ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगाया होगा जिसको लगाना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड रिगार्डिंग WH क्वेश्चंस। एंड देन वी हैव व्हाट्स कॉल्ड the third thing, that is narration of imperatives। आपको पता है उसमें तो ज़्यादा चांस नहीं एग्जाम के आने के। Suppose he said to me, please keep quiet। Imperatives are those sentences which talk about requests, commands, orders, जैसे हमने क्लास 10 तक पढ़ा होगा। तो इनको बोलते हैं हम imperatives। और imperatives में हम क्या करते हैं, नरेशन के वक्त हम to plus first form का यूज करते हैं। Suppose he said to me, please keep quiet। हम वापस बोलते हैं he requested me। अब जो यहां पे मूड है, प्लीज का मूड जो है वो बताता है कि हमें रिक्वेस्ट की जा रही है। Therefore he requested। He said to me, go and get me some water। This is order। He ordered। The PT master shouted, get in line boys and girls। The PT master commanded। Command is used for many, order is used for single person, single individual। Similarly, he said to me, let us go for a party, suggested। Let us is suggestion, proposal। He said to me, shall I get you some water? He offered some water। He said to me, please forgive me। He apologized। He said to me, will you be my friend? He offered or proposed to be my friend। Similarly, he said to me, I'll kill you। He threatened to kill me। So threat, offer, suggestion, apology, request, command, order। The teacher said to the students, always speak the truth। The teacher advised the students to speak the truth। To plus first form। He said to me, please keep quiet। He requested me to keep quiet। We don't say he requests me to please keep quiet, क्योंकि वो बन जाएगा आज शब कदर की रात है। अगर हमने ऑलरेडी रिक्वेस्ट लिखा है तो उसके बाद प्लीज को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। So that is also what you need to keep in mind। And then when we talk of exclamatories, in exclamatory we say he exclaimed with or in। Suppose the boys said, hurrah, we have got rank 1। The boys exclaimed in joy that they had got rank 1। उसके बाद नरेशन वैसी होगी जैसे हो रही है, रूल्स का पालन वैसे होगा जैसे हो रहा था नॉर्मल नरेशन में। He said, alas, I have got very less marks in English। He exclaimed in grief that he had got very less marks in English। He said, wow, what a beautiful scenery। He exclaimed in wonder that the scenery was very beautiful। You can't say he exclaimed in wonder that what a beautiful scenery। No, exclamatory sense has to be removed। It has to be converted into a statement। The scenery was beautiful। He said, what a great shot। He exclaimed in joy or wonder that the shot was great। Mirinda said, oh, Father, how beautiful mankind is। Mirinda exclaimed in wonder that mankind was beautiful। I am reminded of The Tempest, lesson number 5, class 9th। You must be remembering that। So that is exclamatory sense, no? That is, these are the few points that I needed to brush up। थोड़ा आपको वो रिफ्रेश करने के लिए कि आपको नरेशन कैसे करनी है 4 एरियाज में। और उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट चीज जो है ग्रामर वाले कैप्सूल में एक और, वॉइस, चेंज ऑफ द वॉइस। बड़े इजी रूल्स मैंने बनाए हैं आपके लिए। अगर आपको प्रेजेंट सिंपल को वॉइस में तब्दील करना हो, यानी कि एक पैसिव वॉइस बनाना हो, याद रखिए पैसिव वॉइस जैसा मैंने लास्ट टाइम भी कहा होगा, 2 लफ्जों की कहानी है, बी प्लस V3। 2 लफ्जों का। अगर आपने इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, बीन, बीइंग और बी के साथ तीसरी फॉर्म जोड़ दी सामने, तो सेंटेंस खुद ब खुद वर्ब खुद ब खुद पैसिव वॉइस में आ गया। एग्जाम्पल बताता हूं। सपोज आपको प्रेजेंट सिंपल में है सेंटेंस, आई राइट अ लेटर। याद रखें, जब आपको प्रेजेंट सिंपल का पैसिव बनाना हो
रूल ये है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, देन इज, एम, आर, देन V3, देन बाय, देन सब्जेक्ट. इज एम आर, पहले ऑब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर V3, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट. वंस अगेन V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म कितनी इंपॉर्टेंट है. पहले ऑब्जेक्ट लाइए, वर्ब के बाद जो भी पढ़ता है दैट्स ऑब्जेक्ट, वर्ब से पहले जो भी पढ़ता है दैट्स सब्जेक्ट. अब बताइए क्या हो जाएगा. आई राइट अ लेटर. क्या हम कहें अ लेटर इज, अ लेटर एम, अ लेटर आर? ऑब्वियसली अ लेटर इज. उसका थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट. जब आई वहां चला जाएगा तो मी बनेगा. सो रिमेंबर, आई को मी बनता है, वी को अस बनता है, दे को देम बनता है, ही को हिम बनता है, शी को हर बनता है, इट को इट बनता है, यू को यू बनता है. अब यहां पे देख लीजिए दो लफ्जों की कहानी. इज रिटन, दिस इज वर्ब बी प्लस V3. इज तो वर्ब बी की फॉर्म है और रिटन तो थर्ड फॉर्म है. सो वेर एवर यू फील बी प्लस V3, दैट इज पैसिव वॉइस माय डियर फ्रेंड्स. सो पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट सिंपल का रूल ये है जो आप नोट करके रखेंगे. और उसके बाद जो है, अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनाना हो, सपोज यू हैव अ सेंटेंस, आई एम राइटिंग अ लेटर, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है. मैं रूल लिखता हूं यहां पे पैसिव का. फर्स्ट ऑब्जेक्ट, देन इज बीइंग स्लैश एम बीइंग स्लैश आर बीइंग, बीइंग लगाना है यहां पे एक्स्ट्रा, प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. जरा कीजिए ट्राई, क्या करेंगे. आई एम राइटिंग अ लेटर, पहले ऑब्जेक्ट अ लेटर, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, इज बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटन बाय, और सब्जेक्ट जब आई वहां जाएगा तो क्या बनेगा, मी. A letter is being written by me. He is speaking English. English is being spoken by him. The boys are playing games. Games are being played by boys. तो उसके बाद अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनाना हो, प्रेजेंट परफेक्ट, आई विल राइट अ सेंटेंस फर्स्ट. अगर सेंटेंस होता आई हैव रिटन अ लेटर, आप देखिए क्या हो जाएगा. रूल मैं यहां पे लिख लेता हूं. फर्स्ट ऑब्जेक्ट, देन हैव बीन, आप ये नोट भी कर सकते हैं, हैज बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. बताइए क्या हो जाएगा. रूल सामने है, आपको कन्वर्ट करना है पैसिव में. फर्स्ट ऑब्जेक्ट अ लेटर, उसके बाद अ लेटर हैव बीन बोलेंगे कि हैज बीन बोलेंगे. लेटर जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज बीन लगता है. अ लेटर हैज बीन, एंड देन थर्ड फॉर्म द वर्ब, वो तो वहीं पे है रिटन, एंड देन बाय, एंड देन सब्जेक्ट आई को बनेगा मी. इट्स वेरी इजी पीजी. सो प्रेजेंट सिंपल का भी रूल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी रूल, प्रेजेंट परफेक्ट का भी रूल. अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, रिमेंबर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगर आपको सेंटेंस मिले, नो पैसिव, NP. अगर आपको सेंटेंस मिलता है आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर, आप लिखेंगे NP, नो पैसिव. सो प्रेजेंट टेंस में तीन ही के पैसिव्स हैं, प्रेजेंट सिंपल का पैसिव, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव. अब वापस जाते हैं, आगे बढ़ते हैं पास्ट सिंपल. सो पास्ट सिंपल जो है, जिसको प्रेजेंट सिंपल के पैसिव आ गए उसको इजी हो जाएगा. पास्ट सिंपल जो है, सपोज सेंटेंस है आई रोट अ लेटर. अब देख लीजिए आई रोट अ लेटर जो है इसका पैसिव, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, देन वॉज और वर, देन V3, देन बाय, देन सब्जेक्ट. यहां पे वॉज और वर यूज करना है, वहां पे इज एम आर यूज करना था. बताइए व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, अ लेटर, उसके बाद अ लेटर वॉज और अ लेटर वर. अ लेटर वॉज, सिंगुलर के साथ वॉज, आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, सिंगुलर वॉज, वी वर, यू वर, दे वर, बॉयज वर, गर्ल्स वर, प्लूरल्स वर. So a letter was, and then third form of the verb, wrote की third form written. कितनी इंपॉर्टेंट है फॉर्म्स. उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनेगा फिर से आई को बनेगा मी. अगर ऐसे होता पास्ट कॉन्टिन्यूअस, रूल लिख लेता हूं मैं. सपोज
I was writing letters. I was writing letters. रूल देखो क्या है पैसिव का रूल. फर्स्ट ऑब्जेक्ट, देन was being स्लैश were being, then V3, then by, then subject. बताइए क्या बनेगा. Letters, क्या हम कहें letters was being, letters were being. letters plural है, obviously plural के साथ तो were being लगेगा. letters were being, उसके बाद थर्ड फॉर्म राइट की, दैट इज रिटन, उसके बाय, उसके बाद आई को बनेगा मी. सो लेटर्स वर बीइंग रिटन बाय मी. और उसके बाद अगर आपको पास्ट परफेक्ट आ जाएगा वहां से, पास्ट परफेक्ट, सपोज आई हैड रिटन अ लेटर, आई हैड रिटन अ लेटर. इसका मैं रूल बता के रखता हूं. पैसिव बोलता है फर्स्ट ऑब्जेक्ट, देन हैड बीन, then V3, then by, then subject. बताइए क्या हो जाएगा. फर्स्ट ऑब्जेक्ट अ लेटर, फिर हैड बीन, यहां पे कोई चॉइस नहीं है हैड बीन के बगैर, सो अ लेटर हैड बीन. देन थर्ड फॉर्म वो तो वहीं पे है, अ लेटर हैड बीन रिटन, देन बाय, एंड देन आई को बन जाएगा मी. और उसके बाद अगर आपको आएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, नो पैसिव. सो प्रेजेंट के भी 4 में से 3 के ही पैसिव हैं, पास्ट के भी 4 में से 3 के ही पैसिव है. ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है, ना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है. वी मूव ऑन टू फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल. सपोज एक सेंटेंस लिखते हैं, आई विल टेक कॉफी. अब देखो रूल क्या बोलता है. पैसिव का रूल बोलता है फर्स्ट ऑब्जेक्ट, देन शैल बी, अगर ऊपर शैल हुआ तो शैल बी, अगर नीचे ऊपर विल हुआ तो विल बी. शैल बी और विल बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. जरा कर लीजिए क्या करेंगे. रूल सामने, कॉफी दैट इज द ऑब्जेक्ट, ऊपर विल है तो विल बी, कॉफी विल बी, एंड देन थर्ड फॉर्म, व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ टेक. once again verb forms, take, took, taken. coffee will be taken, and then by, and then I को बनेगा me. उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, नो पैसिव, सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फिलहाल हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं पहुंचे. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नो पैसिव. उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इसका रूल है shall have और will have प्लस थर्ड फॉर्म. सपोज she will have written a letter, ये है सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का. शी विल हैव रिटन अ लेटर, इसका पैसिव क्या बनेगा. फर्स्ट ऑब्जेक्ट, देन शैल हैव बीन, या विल हैव बीन, प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. बताइए क्या बनेगा. अ लेटर, अ लेटर shall have been या will have been, ऊपर will have है इसलिए a letter will have been. उसके बाद थर्ड फॉर्म वो तो वहीं पे है, written, उसे by, उसके बाद I को she को बनेगा her. a letter will have been written by her. और उसके बाद लास्ट टेंस, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इसके लिए कोई भी कष्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज नो पैसिव फॉर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो अगर देखा जाए टेंसेस के एतबार से, आउट ऑफ 12 टेंसेस ओनली 8 टेंसेस हैव देयर पैसिव्स. Present simple has passive, present continuous has passive, present perfect has passive, present perfect continuous has no passive. Past simple has passive, past continuous has passive, past perfect has passive, past perfect continuous has no passive. Future simple has passive, future continuous has no passive. Future perfect has passive, future perfect continuous has no passive. So पैसिव का जो लेखा जोखा है, 2 लफ्जों की कहानी आप याद रखेंगे, B प्लस V3. जरूर कोई स्ट्रक्चर जो है पैसिव का गलत लिखा गया होगा वहां पे एग्जामिनेशन के एडिटिंग पेज में और क्वेश्चन में, उस पैसेज में, और आपको पैसिव्स के रूल्स के मुताबिक उस
गलती को आइडेंटिफाई करना होगा, and then you'll have to rectify that mistake as per the concept that we have read about passive voice, where the tenses, narration and passive voice, तीन चीजें जो है हमने इस लेक्चर में कवर कर ली। जो बाकी चीजें हैं ग्रामर की उसको हम लेक्चर नंबर 2 में कवर करेंगे, और आप नोट्स बनाते जाएंगे, इन वर्ड्स को, इन पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाएंगे और उन पे गौर करते जाएंगे। और इफ यू हैव एनी डाउट्स 9149753891, this is where you can send a WhatsApp note, you can send a voice note. Sir, as I was reading this lecture, यहाँ पे थोड़ा हमें दिक्कत हो गई समझने में, ज़रा आप ये थोड़ा और explain करेंगे? I can send you a voice note back if you have any confusions. So this matter is going to be hugely beneficial to all of you dear students of class 12. एक एक लेक्चर को आप जहन में रख के चलिए, याद रखें it is 12 at the rate of 12. That means only 12 लेक्चर्स में हम पूरे 12th का सिलेबस जो है इंग्लिश का वो कवर करने जा रहे हैं। नेक्स्ट अप it's going to be rest of the grammar, and then we move to writing skills, and then we move to literature, and all those 100 marks are going to be ours for this exam. Stay positive, stay optimistic, stay cool as cucumber. As I have been telling you, I am very confident that once again we'll conquer this fort of English through ORCC 2025 right from the platform of Sky Classes. Tufale Haji signing off. Till the next meet, it's a goodbye. Take care and stay blessed. Assalamu alaikum.